हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनीश शर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एट वेपन। और आज हम फिज़िक्स में मोशन से रिलेटेड बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, विच इज़ एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका इंट्रोडक्शन फिज़िक्स में तब हुआ जब साइंटिस्ट ने ये कोशिश करी कि कोई ऑब्जेक्ट जो कि मोशन में है उसकी वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में किस रेट के साथ चेंज हो रही है। ठीक है, सो बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ एक्सिलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी with respect to time. Okay, this is the most effective definition of acceleration, that the change of velocity upon time. This is acceleration. If we talk about the average acceleration, so last वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, जब एवरेज की बात आती है तो एक इंटरवल में बात हो रही होती है। ओके, ग्राफ के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर वेलोसिटी का जो है वो y एक्सिस पे है और टाइम इज ऑन x एक्सिस, एंड दिस इज द कर्व ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सो बेसिकली हम इन दो पॉइंट्स के अंदर डील कर रहे हैं, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2। इन दो पॉइंट्स के बीच में एवरेज एक्सेलरेशन हमें निकालना है। सो हाउ वी विल कैलकुलेट दिस मैथमेटिकली? एवरेज एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है दैट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में द टाइम इंटरवल विच हैज़ बीन कंसिडर्ड। ओके, सो अगर इस ग्राफ के अकॉर्डिंग देखें, सो v1 इज द वेलोसिटी एट t1 टाइम t1 and v2 is the velocity at time t2. So average acceleration will be v2 minus v1 upon में t2 minus t1. Okay, and the SI unit of the acceleration is meter per second square. Okay, and now if we do the problem on average acceleration, so let's do this problem. It has been given to us that t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पर जो वेलोसिटी है दैट इज 0 मीटर पर सेकेंड, मीन्स इट इज 0। एंड एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पर जो वेलोसिटी है दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड, एंड एट t इज इक्वल टू 10 सेकेंड द वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड, and at t is equal to 15 second the velocity is again 0. Okay, now what need to find? We need to find the average acceleration between 0 to 5 second, second is 5 to 10 second, then 10 to 15 second, and also we need to show their physical significance on the graph as well. Okay, so between 0 to 5 second, what will be the average acceleration? That will be velocity at 5 second, which is equal to 10 meter per second. Okay, and minus velocity at 0 second, that is 0, upon में the time interval means 5 minus 0, so it will be 10 by 5, that is 2 meter per second square. This will be the average acceleration between 0 to 5 second. Okay, now between 5 to 10 second, the velocity at 10th second will be 10 minus velocity at 5 second, that is again 10, upon the time interval, that is 10 minus 5. I am using this formula. Okay, so on calculating it will be 0. Now the average acceleration between 10 to 15 second will be velocity at 15 second, that is 0. Okay, and the velocity at 10 second, that is 10, upon the time interval, that is 15 minus 10. So this will be equal to minus 2 meter per second square. So if we show these values on the graph, so it will be look like 0 से 5 सेकेंड में एक्सेलरेशन आ रहा है, एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. Okay, so this is time axis
द टाइम ऑन द एक्स एक्सिस एंड द एक्सेलरेशन ऑन द वाई एक्सिस. सो 0 से 5 में अगर हम देखते हैं, सपोज दिस इज 2. ओके, तो यहाँ पर ऐसे आएगा. लेट मी चेंज द कलर. ओके, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा. ठीक है. देन in 5 to 10 second, between 5 to 10 second, the average acceleration value is 0. So ये suddenly नीचे गिरेगा एंड इस वाली एक्सिस पे चलेगा, इस वाली एक्सिस पे. ओके, देन बिटवीन 10 to 15 second the value is negative. The acceleration value is going to be negative. It means the acceleration is decreasing, and decreasing acceleration is called as deceleration. Okay, so this is 2. Let me mark this acceleration on downward as well, and let this is -2. So the value will be here like this. सडनली ये -2 पे जाएगा और इस तरीके से यहाँ पे शो हो रहा है. ठीक है, तो ये एक्सीलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम का एक कर्व बन गया. नाउ कर्व तो बन गया, ग्राफ तो बन गया. नाउ वी ऑल्सो हैव टू शो दिस फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस ग्राफ. ओके, सो बिटवीन 0 to 5 सेकेंड वी आर वॉचिंग दैट द एक्सेलरेशन इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम. एक्सेलरेशन जो है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है. इसका मतलब दिस इज नॉट यूनिफॉर्म, और यहाँ पर ये यूनिफॉर्म नहीं है. इसका मतलब नॉन लीनियर है, सॉरी, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है. तो इसको हम कह सकते हैं दैट दिस इज वेरिएबल बिकॉज दिस इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, दिस इज चेंजिंग विद टाइम. अगर हम 5 to 10 सेकेंड के इंटरवल में देखते हैं, यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 आ रही है. और अगर हम इस इंटरवल में देखते हैं 10 to 15 सेकेंड वाले इंटरवल में, यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू कॉन्स्टेंटली -2 ही है, कांस्टेंट वैल्यू है. ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू है. ये जो 0 वाला जो केस है जहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है, यही चीज़, यही ऐसा केस है जहाँ पर हम अप्लाई करते थे बचपन में, दैट डिस्टेंस इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम. ठीक है, इसी वाले केस में हम अप्लाई करते थे कि डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, जब एक्सेलरेशन हुआ ही नहीं करता था, जब एक्सेलरेशन 0 होता था और वेलोसिटी यूनिफॉर्म हुआ करती थी. ठीक है, लेकिन ये दो नए केसेस हैं जहाँ पर एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, और जहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. सो गाइज, जो हमारा टॉपिक स्ट्रेट लाइन मोशन इन फिजिक्स 11th क्लास, वी आर रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू दिस कॉन्सेप्ट वेयर द एक्सेलरेशन इज़ कांस्टेंट. हम केवल इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, वेरिएबल वाले एक्सेलरेशन के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे. ओके, सो एवरेज एक्सेलरेशन का बात की, अब हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं. इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज बेसिकली द एक्सेलरेशन एट टाइम t. ठीक है, तो जहाँ हमने पहले पढ़ा था दैट इज एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल v2 - v1 अपॉन t2 - t1. इसी को हम कह सकते हैं डेल्टा v अपॉन डेल्टा t. लेकिन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वो जहाँ पर चेंज बहुत बहुत नेग्लेजिबल होता है, दैट इज लिमिट टेंड्स टू 0 डेल्टा v अपॉन डेल्टा t. इसको हम कह सकते हैं dv/dt, जहाँ पर हमारा कैलकुलस वाला कॉन्सेप्ट आता है. और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को हम ये भी कह सकते हैं दैट इट इज़ द स्लोप ऑफ द कर्व अंडर vt ग्राफ, जो कि वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ होता है उसमें जो एक कर्व है उसका जो स्लोप होगा ना, उसी को हम बेसिकली इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कह देते हैं. मैंने इस वाले ग्राफ में दिखा रखा है. दिस इज़ द graph of velocity versus time, and this is the curve which is representing the motion of the object. Okay, so at some time t1, यहाँ पर जब इस ग्राफ पर एक टेंजेंट खींचते हैं ना, तो ये जो टेंजेंट है, जो स्लोप है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. ठीक है,
and this is the basically simply the acceleration at time t1 and just like this at point 2. okay, and now if we discuss, because मैंने पहले ही डिस्कस बताया कि हम केवल कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले कंडीशंस के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं. तो अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन के ग्राफ्स का अगर देखा जाए, वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ में अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट डाला जाए तो कैसे कर्व बनेगा, हमें ये भी देखना ज़रूरी है. ठीक है, तो बेसिकली स्ट्रेट लाइन बनती है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में. ठीक है, और अगर और मैंने बताया कि एक्सेलरेशन बेसिकली स्लोप है उस कर्व का. ठीक है, और स्लोप अगर है तो लाइक वी आर टेकिंग दिस ग्राफ नाउ. ओके, तो अगर स्लोप है एक्सेलरेशन और कांस्टेंट वाले केस में वो लाइन ही होगा. तो अगर वो बेसिकली ऐसे जा रहा है राइट हैंड साइड पे जहाँ पर एंगल पॉजिटिव है, सो इट मीन्स दिस इज़ द केस ऑफ पॉजिटिव एक्सेलरेशन. यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा और ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, ओरिजिन से ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन, और ओरिजिन से नीचे वाला जो हिस्सा होता है इसको हम कहते हैं नेगेटिव डायरेक्शन. तो क्योंकि ये वाला जो लाइन इस तरीके से जा रही है तो हम इसको देख के सिंपली ये कह सकते हैं कि दिस इज़ द पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड द ऑब्जेक्ट इज गोइंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन. ओके, अब इसी तरीके से इस वाले अगर ग्राफ को देखें तो क्योंकि ये जो हमारी लाइन है, जो कि हमारा कर्व हमें दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर में, ये ओरिजिन से ऊपर है, इसका मतलब द ऑब्जेक्ट इज गोइंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन. ओके, पॉजिटिव डायरेक्शन, एंड दिस लाइन इज मेकिंग द नेगेटिव एंगल. ओके, सो इट मीन्स दैट द एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव. ओके, likewise if we see this graph, then हम देख सकते हैं कि जो ये लाइन है ये ओरिजिन से नीचे है, इसका मतलब द ऑब्जेक्ट इज गोइंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन. ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है. और अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो वो भी नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा. ठीक है, अब ये वाला ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्थ वाला. इसमें क्या हो रहा है, टाइम 0 से लेकर t1 तक जो ऑब्जेक्ट है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है. क्यों? क्योंकि ओरिजिन से ऊपर वाला हिस्सा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन एक्सीलरेशन नेगेटिव है. ठीक है, और अगर हम टाइम t1 से लेकर t2 की बात करें तो एक्सीलरेशन तो नेगेटिव ही होगा क्योंकि स्लोप नेगेटिव जा रहा है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन भी अपोजिट हो जाएगी, डायरेक्शन भी नेगेटिव हो जाएगी. ठीक है, तो ये हमने एवरेज एक्सीलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन और वेलोसिटी वर्सेस टाइम में जो ग्राफ्स होते हैं फॉर कांस्टेंट एक्सीलरेशन, इनके बारे में डिस्कस किया. साथ में हमने एक एवरेज एक्सीलरेशन पे क्वेश्चन भी किया. अब मैं आपको एक असाइनमेंट क्वेश्चन देने जा रहा हूँ जो कि आपको नेक्स्ट क्लास में हम असाइनमेंट क्वेश्चन भी करेंगे और आपको भी सॉल्व करना है. दैट इज़ द object is moving with the velocity which is a function of time as v equals to 3t square plus 6t plus 12, and you have to find the average acceleration between time interval 5 to 15 second, and also the instantaneous acceleration at t equals to 5 second and t equals to 15 second. Okay guys, so I hope आपको समझ आया हो. अगर कोई डाउट हो you can ask me in the comment section. Thank you so much.